Hello everyone, good morning to all of you and welcome to the channel of Residential Paramount Mission School. My dear students, in this video we will do the question answers which include objective, subjective and some of the grammar related things we all will do in this video. So I am going to start. This is the first chapter of class 8, India My Motherland. We have completed the poem and now it's time for question answer. Take the correct answer. Every Indian celebrates. What does every Indian celebrate? प्रत्येक भारतीय क्या सेलिब्रेट करते हैं? लाइफ, फेस्टिवल, पार्टी. So answer will be life that we have studied in the poem. Each one busy in building roads, bridges, houses. The answer is bridge. Third, dash flows in ravines and bridges. Peace, water, ice. Then the correct answer would be peace, क्योंकि हमारे देश में शांति बहती है according to the poem. All are trying to listen to their inner dash. सब लोग हमने बताया था कि अपने अंतर आत्मा को सुनने की कोशिश करते हैं. Sound, voice, music. The correct option would be B, voice. Which word means happy? Happy इसमें से दिए हुए किन शब्द का मतलब वही है जो मतलब हैप्पी का है? Delight, celebrates, stress. Then the correct answer for this question is option number A, delight. Sixth, what does ravines mean? Ravines का मतलब क्या है? Deep valleys, deep and narrow valleys, deep rivers. Here the correct answer is B, deep and narrow valleys. Now fill in the blanks. The festival of dash and light. The festival of colors and light. Here in this blank we will fill colors. The green dash sway to the beat of the heart. The green field. Here field should be filled. Each one understanding the other with poise. P-O-I-S-E, poise. That means calm. India is a dash to learn from. India is a school to learn from. हम लोगों ने पोएम में देखा है कि कवि कहते हैं कि भारत एक विद्यालय है जहाँ से पूरे संसार के लोग सीख सकते हैं. So India is a school to learn from. Here helping each other is the norm. Norm would be the answer for this blank. Norm, N-O-R-M. Next, use a dictionary and write the meaning of these words.
First of all, I will pronunciate the following words that you will pronunciate after me. Listen. Harang, harang, harang. Pronunciation of this word is harang. Harang means a loud and angry speech. जोर जोर से और गुस्से में दिया गया भाषण हारंग कहलाता है। हीमोग्लोबिन, 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 a red substance in blood. Hallelujah. Third number is hallelujah, means joyous praise in song. मतलब एक गाना में, एक गीत में जो प्रशंसनीय शब्द का उच्चारण होता है उसी को हैल्यूज कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज हार्बिंगर, हार्बिंगर, वार्निंग ऑफ डेंजर, वार्निंग ऑफ डेंजर। हैप्टागम, फिफ्थ वर्ड इज हैप्टागम, हैप्टागम। नाउ let us start the section B. Use the opposite of the words given in the box to complete the sentences. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन सारे वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल हमें इन फिलर्स में देना है। So very first sentence we will look, this dash knife is useless, this dash knife is useless. Then sharp, sharp का अपोजिट blunt, जो नाइफ ब्लंट है वही तो यूजलेस होगा, तो दिस ब्लंट नाइफ इज यूजलेस। नेक्स्ट योक, दिस फूड टेस्ट्स, दिस फूड टेस्ट्स, ये जो भोजन है वो कैसा इसका स्वाद है, इस भोजन का स्वाद कैसा है, स्ट्रेंज, बिकॉज हियर एक्सक्लामेटरी वर्ड इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, मीन्स आश्चर्य कर रहे हैं, आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि यू दिस फूड टेस्ट स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, this word is opposite of simple. Next, turn off the radio, it's very, कहा जा रहा है कि रेडियो को बंद करो, यह बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, शार्प है, मॉडर्न है, वंडरफुल है क्या, तो टर्न ऑफ द रेडियो, इट्स वेरी नॉट प्लीजिंग मीन्स अनप्लीजिंग और अनप्लीजेंट, टर्न ऑफ द रेडियो, इट्स वेरी अनप्लीजिंग, ये बहुत ही अनप्लीजिंग है, ये सुहावना नहीं है, इस वजह से रेडियो को बंद करो। द प्रिंस लिव्ड इन अ डैश कैस्टल, राजकुमार कैसा महल में रह रहे हैं, कैसे किला में रह रहे हैं, तो द प्रिंस लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल कैस्टल, ब्यूटीफुल, इट्स द अपोजिट ऑफ, इट्स द अपोजिट ऑफ हिडियस, हिडियस, हिडियस मीन्स अरुचिकर, बेकार, जो देखने में बहुत भद्दा लगता हो, तो राजकुमार कैसे कैसे कैस्टल में रह रहे हैं, तो ब्यूटीफुल। डैश आई वॉज डैश बाय द एंटिक्स ऑफ द कीटेंस, यहाँ एंटिक्स का मतलब है विचित्र व्यवहार, एक असाधारण सा व्यवहार, तो कीटेंस का मतलब बिल्ली के बच्चे, तो आई वॉज
pleased by the antics of the kittens. I was pleased by the antics of the kittens. Next, number 6th. The dwarf lived in an dash cottage. The dwarf lived in an awful cottage. Awful means not wonderful, अच्छा नहीं, बेकार, छोटा. Now I can't read further. I can't read further. This is a rather dash story. I can't read further. This is a rather dash story. मैं इसे आगे नहीं पढ़ूंगा. क्यों? क्योंकि दिस इज अ रादर डैश स्टोरी. कैसा स्टोरी है? इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग होता तो निश्चित मैं आगे पढ़ता, लेकिन ये कैसा है? अनइंटरेस्टिंग है. अनइंटरेस्टिंग. नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8. The dash designs on this fabric are difficult to copy. The dash designs on this fabric are difficult to copy. Ancient. Here answer would be ancient. Ancient means opposite of modern. यानी जो भी मॉडर्न डिज़ाइन होता है उसका कॉपी हो जाता है, लेकिन ये एंशिएंट है, बहुत ही प्राचीन डिज़ाइन है जिसका कॉपी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है. सो द एंशिएंट डिज़ाइंस. नाउ द डैश वाटर्स ऑफ द रिवरलेट मेड रोइंग इम्पॉसिबल. तो काम वाटर यानी शांत जल, इसका अपोजिट क्या होगा? फ्लोइंग वाटर यानी बहता हुआ एक धार से, तो द फ्लोइंग हो जाएगा. नेक्स्ट, द एक्टर ऑर्गेनाइज्ड अ डैश स्क्रीनिंग ऑफ हिज फिल्म फॉर अ सिलेक्टेड ऑडियंस. तो यहाँ पब्लिक स्क्रीनिंग नहीं होगा चूंकि सिलेक्टेड ऑडियंस की बात हुई है, यानी कुछ सिलेक्टेड ऑडियंस, और इसके लिए हम यहाँ पब्लिक का अपोजिट प्राइवेट यूज़ करेंगे. द एक्टर ऑर्गेनाइज्ड अ प्राइवेट स्क्रीनिंग ऑफ हिज फिल्म फॉर अ सिलेक्टेड ऑडियंस. सो दिस वे वी completed the fillers, the MCQs, and now it's time for the question answer. So now we will do the question answer subjective. The first question is, what does building bridge mean? पोयम में बिल्डिंग ब्रिज का मतलब क्या है? तो here building bridge mean making across to one another. यहाँ बिल्डिंग ब्रिज का मतलब है कि एक दूसरे के नजदीक होना. Which line tells that there is peace in the country? पोयम का वो कौन सा पंक्ति है जो हमें बताता है कि देश में शांति है? सो द लास्ट लाइन ऑफ सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा का अंतिम जो पंक्ति है ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का वही बताता है कि दैट इज पीस फ्लोज इन राइविंस एंड रीच. ये वाला जो पंक्ति है जो पोएम के सेकेंड स्टेंजा के फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, इसी से हमें पता चलता है कि देश में शांति है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज ईच वन ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन? कैसे प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को समझने में लगे हैं? आंसर है, ईच वन ट्राइज टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन इन अ काम वे. प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को शांति से समझने की कोशिश करते हैं. इन अ काम वे मीन्स अंडरस्टैंडिंग विथ पॉइज. अंडरस्टैंडिंग विथ पॉइज जो पंक्ति हम लोगों ने देखा था, उसी का मतलब है कि शांत वे में, यानी शांति से समझने का कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द वर्ड नॉर्म मीन?
यहाँ नॉर्म का क्या मतलब है? पोएम में जो बताया गया है कि हेल्पिंग अदर्स इज द नॉर्म, यानी लोगों की मदद करना यहाँ की नॉर्म है। नॉर्म का क्या मतलब है देखते हैं। नॉर्म मीन्स यूजुअल पैटर्न ऑफ लाइफ, जीवन का जो साधारण पद्धति है, जीने का जो पद्धति है, जो व्यवहार हम एक दूसरे से करते हैं, वही नॉर्म कहलाता है, रिवाज जिसको कहते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम इज व्हाट कैन अदर कंट्रीज लर्न फ्रॉम इंडिया? भारत से दूसरा देश क्या सीख सकता है, क्या क्या सीख सकता है? आंसर इसका अदर कंट्रीज कैन लर्न मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज दूसरे देश भारत से सीख सकते हैं। लाइक जैसे कि हाउ टू लिव विथ, हाउ टू मेक पीस एंड हाउ टू लिव विथ एंड हाउ टू make peace and calm, how to respect others and how to enjoy life with the limited resources। यानी कोई भी देश भारत से बहुत सारी चीज़ सीख सकता है, जैसे कि हाउ टू लिव विद हार्मोनी, लिव विद हार्मोनी, यानी साथ साथ एक साथ कैसे लोग रह सकते हैं, ये सीख सकता है। हाउ टू मेक पीस एंड काम, कैसे शांति बनाए रखें। हाउ टू रेस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की आदर कैसे करें। एंड हाउ टू एंजॉय लाइफ विद लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी सीमित स्रोतों के साथ कैसे खुशी खुशी रह सकते हैं, खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। ये भारत से अदर कंट्रीज सीख सकता है। बिकॉज महात्मा गांधी हैज डिस्क्राइब्ड इंडिया एज इंडिया इज यूनिक एंड नॉन पेरिल कंट्री। नॉन पेरिल मीन्स that cannot be defeated by any country in the sense of civilization and culture. Here people just live with peace and they don't run after the money. They are satisfied with what they have got, that what they have earned. But when he has compared Indian civilization and culture with Western civilization and culture, and has told that there is huge difference between the culture of both countries, Indian and Western. The people of Western countries just run after the economics. They just like to be strong economically, and so they don't get enough peace, they don't get calm while they live. But in India, everybody enjoy their life. So this way we have completed the question answers of this chapter, India, my motherland. Thank you. Now you can note down the question and answers, and you will do it in your fair, because when school will open, all the question answers will be checked, so be prepared.